Hello students, welcome to lecture number 2 of biomolecules. In last lecture, we taught about the introductions of biomolecules and classification of carbohydrate. We know that the classification of carbohydrate depending upon their behavior towards hydrolysis. So according to this base, we classified into three portions: monosaccharide, oligosaccharide and polysaccharide. Today we start a new point, is 14.1.2 is a monosaccharide, and mainly here in these monosaccharide portions we will discuss about the structures of pentose as well as hexose. Once again, as we know that monosaccharide are the simplest carbohydrates, which cannot be hydrolyzed to a smaller molecule, right? So they contain 3 to 7 carbon atoms. And we know that there are about 20 monosaccharides which occur in nature. Nature में अभी near about 20 monosaccharides are available. Okay. So out of them, first one we have to classify into aldose. First we have to aldose. So what is the monosaccharide of aldose? So monosaccharide containing an CHO group. Those monosaccharide who having a aldehyde group are called as an what? So it's called as an aldose. Okay. So aldehyde group is monovalent, because we know that this CHO group is always monovalent. Therefore, it always present at the end of the carbon chain. Mainly, they are situated at C1 position. Then, what about the ketose? Another one is a ketose. So monosaccharides containing a keto group means C double bond O. Keto is called as an ketosis. We know that this keto group is a divalent in nature. It's a divalent in nature. So it can be present anywhere along the carbon chain. However, in all the naturally occurring ketosis, keto group is always present at a carbon atom next to the terminal carbon. It means that in shortcut or in short manner we say that it's C2 positions. देखिए ये क्या बता रहा है कि मोनोसैकेराइड्स हमने जो अभी पढ़ा हुआ है वो हमें मालूम है कि वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स है. क्यों सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है? क्योंकि उसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो पा रहा है, यानी वो सिंपलेस्ट है, राइट? Most of the monosaccharides they having a 3 or 7 carbon, so 3 to 7 के बीच में उसके कार्बन कंटेनिंग होते हैं. And it presently in nature on an average 20 monosaccharides are occur. उसमें दो पोर्शंस हमने डाले हुए हैं. या मोनोसैकेराइड्स aldose टाइप के हो गए, यानी इसमें aldehyde ग्रुप होगा, और aldehyde हमें मालूम है मोनोवेलेंट होने की वजह से वो टर्मिनल पे ही रहेगा, और ज्यादातर हम यहाँ पे देखेंगे तो C1 पोजीशंस पे ही हमें मिलेगा. While in the case of ketosis group,
राइट। सो मोनोसेकेराइड कंटेनिंग अ कीटोन ग्रुप इज कॉल्ड एज कीटोसिस, तो वो डाइवेलेंट है, तो वो कहां पे रहेगा, तो कि वो डाइवेलेंट होने की वजह से कहीं पे भी हो सकता है चेन में। लेकिन हम यहाँ पे जो भी पढ़ेंगे नेचुरली अकरिंग कीटोसिस जो भी पढ़ेंगे, तो वहां पे हमें नेक्स्ट टू टर्मिनल कार्बन में मिलेगा, यानी C2 पोजीशंस में हमें मिल सकता है। ठीक है, तो ये मैंने अल्डोसिस और कीटोसिस के बारे में आपको बताया है। आपको एक बात और भी बता दूं कि दिस अल्डोसिस एंड कीटोसिस राइट आर फर्दर क्लासिफाइड, या मुझे इसका क्लासिफाइड करना है, तो क्लासिफाइड किस तरह से हो जाएगा, सो एज ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस एक्सेट्रा। हमने हमें अभी बताया कि अभी हमें 3 to 7 कार्बन के बीच में चलना है, तो दोज अल्डोसिस और कीटोसिस हैविंग 3 कार्बन इन देयर मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स, सो इट्स कॉल्ड एज ट्रायोसिस। सो ट्रायोसिस में 2 हो गए, अल्डोट्रायोस, कीटोट्रायोस, अल्डोटेट्रोस, कीटोटेट्रोस, अल्डोपेंटोस, कीटोपेंटोस, अल्डोहेक्सोस, कीटोहेक्सोस, अल्डोहेप्टोस, कीटोहेप्टोस। तो ये जो मैंने क्लासिफिकेशन किया है वो किसकी वजह से किया है, अकॉर्डिंग टू 3 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम, 5 कार्बन एटम, 6 कार्बन एटम, 7 कार्बन एटम की वजह से मैंने किया है ना। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे। देखिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा इसको मैं एक और तरीके से भी समझाना चाहता हूं, जिससे मैं यहाँ पे एक दिखा रहा हूं आपको एक क्लास। ठीक है, फिर उसकी मैं मोलेक्युलर फॉर्मूला में अभी दिखाऊंगा, फिर उसकी मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी आपको दिखाऊंगा, और फॉर सम एग्जांपल्स हम यहाँ पे डालेंगे। जैसे मेरे पास है अल्डो ट्रायोसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्डो ट्रायोसिस? ये मोनोसेकेराइड है, इसमें 3 कार्बन होंगे इसके मॉलिक्यूल्स में, और इसमें एल्डिहाइड है जो फर्स्ट नंबर पे लगा हुआ है। सो द मोलेक्युलर फॉर्मूला इज लाइक दैट C3H6O3, और उसका जो हम यहाँ पे मैं तो एक में ही आपको बताऊंगा, CH2OH है, CH2OH है, फिर क्या होगा CHOH होगा, क्योंकि हमने पॉलीहाइड्रोक्सी, क्योंकि हमारे कार्बोहाइड्रेट की मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज लाइक दैट carbohydrates are defined as the optically active polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones or substances which gives these on hydrolysis, वो हमने डेफिनेशन लास्ट सेशन में बताई थी। फिर हम इसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड का यहाँ पे एग्जांपल लगा देंगे। ये देखिए आप, ग्लिसरॉल्डिहाइड का हम यहाँ पे एग्जांपल लगा देंगे। मैं आपको एक एक जो कंपाउंड है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरह से हो सकता है। देखिए अल्डोट्रायोस का मैंने अभी दिखाया, फिर से मैं आपको अल्डोट्रायोस की मैं बात कर रहा हूं। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको CH2OH है, देखिए यहाँ पे CHOH है, और यहाँ पे है CHO। मैंने यहाँ पे उल्टा कर दिया है। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। इसमें एल्डिहाइड है? यस है। पॉलीहाइड्रोक्सी है? या है। फिर इसमें कायरल कार्बन की प्रोबेबिलिटी है? तो क्या डेफिनेटली है। देखिए यहाँ पे आपको कायरल कार्बन की प्रोबेबिलिटी दिखाई देगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बोहाइड्रेट फैमिली का मेंबर है, और इसका नाम हम क्या लगाएंगे, सो कि इट्स अ ग्लिसरॉल्डिहाइड की तरह से हम दिखा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने अल्डोट्रायोस का दिखाया। अभी मैं आपको कीटोट्रायोस का भी मैं दिखा सकता हूं। जैसे मेरे पास है CH2OH है, C डबल बॉन्ड O है, CH2OH है, तो ये कीटोट्रायो। देखिए ये क्या है, कीटो है, फिर क्या है, तो क्या ट्रायोस है। ठीक है, इसमें जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिया हुआ है वो कौन सा है, तो कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, इसको हम बोलेंगे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। अभी ये मैंने दोनों दिखाए हैं वो ट्रायोस फैमिली के दिखाए हैं। ठीक है, अभी मैं आपको टेट्रोस फैमिली की बात करूंगा। जैसे मेरे पास है CHO, CHOH, CHOH, देन CH2OH। कितने कार्बन है? 4 है। देखिए आपका इसमें क्या है, C4H8O4 इसकी फॉर्मूला हो गई है। फिर हम देखेंगे तो ये क्या है, इसका पर्टिकुलरली हम देखेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, अल्डो टेट्रोस बोलेंगे ना, अल्डो टेट्रोस बोलेंगे हम। और ये जो अल्डो टेट्रोस हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, इसमें कई एग्जाम्पल जैसे इरिथ्रोज है, थीरोज है,
इसमें कहीं एग्जांपल्स यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, 2 कायरल कार्बन आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो उसमें से तो 4 कंपाउंड मिलेंगे, ठीक है, लेकिन 2 नेचर में है, 2 नेचर में नहीं है। यानी मैं आपको यहाँ पे जो आपको अच्छी तरह से आप देखिए कि अल्डोटेट्रोस, आपको अभी क्या करना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्डोटेट्रोस, मींस पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए, फर्स्ट एल्डिहाइड होना चाहिए, बाकी के आपको कार्बन यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। जैसे ये मैं कीटोज में आपको दिखा रहा हूं, तो कीटोज में क्या होगा, ये देखिए CH2OH है, दूसरे पे तो मुझे मालूम है C डबल बॉन्ड है, तीसरा है, ये चौथा भी मुझे मालूम है CH2OH है, और ये HCOH है, हमें मालूम है ये कायरल है, राइट। तो ये मैंने कीटोटेट्रोस का, मैंने यहाँ पे जो आपको एग्जांपल दिया हुआ है वो मैंने किसका दिया हुआ है, कीटोटेट्रोस का एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे इसका जो अभी नाम है मैं आपको बताऊंगा, कीटोटेट्रोस में इसका नाम है इरिथ्रोलुस, इसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। अभी आपको नाम की बहुत जरूरत नहीं है, अब देखिए एक बार हमें, लेकिन हमें यहाँ पे जो हम दिखाना चाहते हैं मोनोसेकेराइड, एंड प्रेजेंटली वी आर वेरी मच फोकसिंग ऑन व्हाट, वी आर वेरी मच फोकसिंग ऑन पेंटोस एंड हेक्सोस। हम पेंटोस हेक्सोस में ज्यादा उसमें हम देखना चाहते हैं। देखिए मैं यही आपको आगे बढ़ाना चाहता हूं, जैसे मैं पेंटोस में ले जाना चाहता हूं, तो मेरे पास है यहाँ पे CHO है, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ये टर्मिनल आ गया है। यहाँ पे मुझे मालूम है HCOH है, यहाँ पे भी मुझे मालूम है HCOH है, यहाँ पे भी मुझे मालूम है HCOH है, ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, ये भी, यानी इसमें 8 आइसोमर्स हो सकते हैं। 4 नेचर में है, 4 नेचर में नहीं है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, पहले तो अल्डो पेंटोस ही बोलेंगे ना, अल्डो पेंटोस। इसका जो फॉर्मूला है आप देखिए, C5 है, H10 है, O5 की तरह से चल रहा है, ठीक है। इसमें हम क्या आएंगे, आर्बिनोज आएगा, रिबोज आएगा, जाइलोज आएगा, लाइजोज आएगा, इस तरह से हम अल्डोपेंटोस की बात करेंगे। मैं अभी जो नाम बोल रहा हूं ना, इसमें से आपको एक ही नाम देखना है, रिबोज, बाकी का नाम की कोई जरूरत नहीं है। मैंने क्यों बोला, क्योंकि नेचर है ना, नेचर में 4 ही कैपिटल D नॉमेनक्लेचर वाले ही होते हैं। कैपिटल L इसका नेचर में कोई इसका इंपॉर्टेंस नहीं होता, यानी होता ही नहीं है, नेचर में नहीं होता है, माइंड वेल, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं आपको कीटोपेंटोस का एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूं। CH2OH है, C डबल बॉन्ड O, 3, 4 और 5, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए HCOH है और HCOH है, तो कितने कायरल कार्बन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 यानी 4 इसमें ऑप्टिकल आइसोमर हो सकते हैं, लेकिन 2 ही नेचर में होंगे, बाकी के 2 कैपिटल L नहीं होंगे नेचर में। तो इसमें कीटोपेंटोस का मैंने अभी रिब्यूलोस और जाइलिलोस का मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिखाया हुआ है, लेकिन आपको एक ही देखा है, कीटोपेंटोस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। हमें मालूम है C5 है, H10 है, O5 है। इस तरह से हम अल्डो हेक्सोस की बात करेंगे। अभी जो हमारा जो इंटरेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट वो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इस तरह से हम लिख सकते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, HOH है, HOH, अभी तो मैं एक स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है, राइट। मैंने अभी आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। देखिए इसमें कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है, यानी इसमें 4 कायरल कार्बन है। तो 2:4 की वजह से हम देखेंगे तो उसमें 16 आइसोमर्स हो सकते हैं, जिसमें से 8 है और 8 है वो नेचर में है, बाकी के 8 नेचर में नहीं हो सकते हैं, राइट। जो अल्डोहेक्सोस मैंने आपको दिखाया हुआ है, इसके 8 के मैं नाम बता रहा हूं, आप अब इससे परेशान मत होइए, आप नाम सोचिए। मैं तो, क्योंकि मेरा जो अभी इंटरेस्ट है, मैं आपको अभी जो दिखाना चाहता हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं, तो वो बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि उसका जो आपको कायरलिटी का मालूम होगा तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये C6H12O6 है। कई बंदे इस तरह से देख रहे हैं कि जैसे देखिए मैं एक स्ट्रक्चर ऐसा करूंगा, इसमें OH यहाँ पे ले लाऊंगा तो ये अलग हो जाएगा, फिर दोनों में अलग, मैं इन शॉर्ट में क्या बोलना चाहता हूं कि इन शॉर्ट अल्डोहेक्सोस में आपको 16 आइसोमर्स होने चाहिए, लेकिन नेचर में 8 है। एक का नाम है ग्लूकोज, एक का नाम है मेनोज, एक का नाम है गैलेक्टोज, एक का नाम है गुलोज, एक का नाम है टेलोज, एक का नाम है आयोडेज, एक का नाम है एलोसे और एक का नाम है अल्ट्रोस। तो ये 8 नाम मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाए हैं। तो यानी इसमें से हमें किस में जाना है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज की बात में हम फ्यूचर में करेंगे। ज्यादा से ज्यादा वी आर इंटरेस्टेड इन ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो इस तरह से कीटोहेक्सोस भी हो सकता है ना। तो कीटोहेक्सोस का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो CH2OH है, C डबल बॉन्ड O है, तीसरा है
1 2 3 4, ये 5 और 6, ये अभी मैं फिशर प्रोजेक्शंस आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे। तो ये जो फिशर प्रोजेक्शंस में आपको दिखा रहा हूं, तो आपको मालूम हो जाना चाहिए कि यहाँ पे भी कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है, यानी इसमें 3 कायरल कार्बन है, यानी 2^3, यानी 8 आइसोमर्स हो गए। इसमें से 4 नेचर में है, कैपिटल डी वाले, 4 नहीं है, राइट। तो जो 4 हो गए वो क्या हो गए, उसके भी नाम होने चाहिए ना। जैसे एक का नाम है फ्रुक्टोज, एक का नाम है सोरबोज, एक का नाम है टेक्सटोज, ऐसे एक्सेट्रा, ऐसे नाम हम यहाँ पे रखना चाहेंगे। तो ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूं कीटो हेक्सोस की मैंने बात की थी, राइट। इसका भी सेम फॉर्मूला है, C6H12O6। दोनों में चेंज क्या है, ये आल्डो फैमिली का है, ये कीटो फैमिली का है, और ये हेक्सोस है, दोनों हेक्सोस फैमिली के ही है, लेकिन इसमें अल्डिहाइड फैमिली है और एक में इसमें क्या है, कीटोन फैमिली है। इस तरह से मैं हेप्टोज में भी चला जाऊंगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूं अल्डो हेप्टोज है, कीटो हेप्टोज है। तो इस तरह से ही हमें आगे बढ़ना चाहिए कि किस तरह से यहाँ पे एग्जांपल्स हमें आपको यहाँ पे मैं दिखा सकता हूं, ठीक है। ओके, अभी क्या देखेंगे, तो ये तो मैंने आपको थोड़ा इसका हाइलाइट्स मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। आपकी टेक्स्ट बुक में ये सब कुछ इस तरह से नहीं दिखाया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हमें जो मेरा जो पोर्शंस है वो मैंने मोनोसेकेराइड का क्लासिफिकेशंस यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है। अभी हमें इंटरेस्ट कहाँ पे है, तो अभी मेरा जो नेक्स्ट इंटरेस्ट यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा वो है हमेरा 14.1.3 में है। वो 14.1.3 क्या है, तो कि अभी हम 2 जगह पे ही थोड़ा अपना फोकस रखेंगे। इसमें से ज्यादा मेरा फोकस होगा हेक्सोस शुगर में, और इसमें अल्डो हेक्सोस, और उसमें भी मेरा फोकस ज्यादा से ज्यादा किस में है, ग्लूकोज में है। तो ये 14.1.3 है, वो मेरा जो पोर्शन है वो है प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। तो अभी हम इसके बारे में कुछ बात करना चाहेंगे। सभी को लगता है सर जी ये ग्लूकोज तो नेचर में मिलता है, तो उसकी प्रिपरेशंस भी हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। देखिए, हम अभी थोड़ा उसका जो नेचर में किस तरह से मिल रहा है पहले उसके बारे में बात करेंगे। आपको मालूम है ग्लूकोज है ना, उसका दूसरा एक नाम है, इसका दूसरा नाम है वो है डेक्सट्रोज। यानी नेचर में जो ग्लूकोज हमें मिल रहा है उसका जो पोलरीमीटर का जो हमने रोटेशन देखा था वो डेक्स्ट्रो है, और राइट हैंड साइड रोटेशन करेगा, इसलिए उसका नाम है डेक्सट्रोज भी है। और आप कहीं बार आपको ये भी सुना होगा, उसको ग्रेप शुगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेप शुगर, यानी जो द्राक्ष होती है, राइट, ग्रेप्स होती है, उसमें से ये मिला है, तो इसलिए उसका नाम ग्रेप शुगर रखा गया है। सो ग्लूकोज अकर इन नेचर, जैसे ग्लूकोज नेचर में फ्री स्टेट में भी मिलता है। देखिए इसका फ्री यानी अकेला ग्लूकोज भी हो सकता है, और कंबाइंड स्टेट में भी वो मिल सकता है। ये कंबाइंड स्टेट हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। इट अकर्स इन लार्ज क्वांटिटीज, नियर अबाउट मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं 20% इन राइप ग्रेप्स। जो पकी हुई हमारी जो ग्रेप्स होती है उसमें क्या होता है, इसमें राइप ग्रेप्स में 20% ग्लूकोज है, इसलिए इस ग्लूकोज को क्या नाम दिया हुआ है, ग्रेप शुगर दिया हुआ है। फिर कहीं और जगह पर यह डेफिनेटली ये हनी होती है, तो हनी में भी ये मिलता है। जैसे स्वीट फ्रूट्स है हमारे पास, स्वीट फ्रूट्स है, जैसे हम बता रहे हैं, जैसे एप्पल्स है, पीच है, मैंगोज है, राइट। तो वहां पे भी हमें ये मिल सकता है। और कंबाइंड स्टेट में किस तरह से मिलता है, ये तो मैंने फ्री स्टेट की बात की थी। अभी आप कंबाइंड स्टेट में आप देखेंगे, तो जैसे मेरे पास कंबाइंड स्टेट का मतलब ये है कि कंबाइंड स्टेट में इट अकर्स इन ग्लाइकोसाइड्स, राइट। तो ग्लाइकोसाइड्स मेरे पास होगा, तो ग्लाइको साइड्स में मुझे मिलेगा। फिर मैंने आपको बताया था डाइसेकेराइड्स में तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, डाइसेकेराइड्स में मुझे मिल सकता है, डाइसेकेराइड्स का मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा तो भी मिल सकता है, और पॉलीसेकेराइड्स में भी मुझे मिल सकता है। तो मैं क्या करूंगा, पॉलीसेकेराइड्स का हाइड्रोलिसिस करूंगा तो भी मुझे ग्लूकोज मिलेगा, मैं डाइसेकेराइड का हाइड्रोलिसिस करूंगा तो भी मुझे ग्लूकोज मिलेगा, और ग्लाइकोसाइड्स में भी मुझे ग्लूकोज मिल सकता है। तो इस तरह से पहले तो मैंने आपको यह जो अकरेंस यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, फिर मैं अभी आपको, अब देखिए अकरेंस में तो
इसमें से तो मुझे कुछ करना ही नहीं है क्योंकि ये फ्री स्टेट में ही पड़ा हुआ है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा कि मेरा जो कंपाउंड है वो प्रिपरेशंस किस तरह से, जैसे मैं डाइसैकेराइड्स में और पॉलीसैकेराइड्स में से इसका हाइड्रोलिसिस करके किस तरह से मैं वहां पे पहुंच सकता हूं। तो अभी मेरा नेक्स्ट पोर्शन है वो मैं यहां पे ले जा रहा हूं। तो अभी हमारा प्रिपरेशंस का जो पोर्शन है वो यहां पे मैं दिखाना चाहता हूं। तो प्रिपरेशंस कहां से मुझे करनी है, क्योंकि ये भी फ्री स्टेट में नहीं है, कंबाइंड स्टेट में है। तो मैं प्रिपरेशंस फर्स्ट में करना चाहूंगा फ्रॉम सुक्रोज। ये सुक्रोज है ना, वो डाइसैकेराइड्स है, वो हमें मालूम है केन शुगर होती है, केन शुगर हैविंग अ सुक्रोज, राइट। सो व्हेन सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज्ड, सुक्रोज का मेरा फॉर्मूला C12H22O11, वो सुक्रोज का फॉर्मूला है, ठीक है। ये सुक्रोज को हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, ठीक है, in alcoholic solution. So once again, when sucrose is hydrolyzed by boiling with either dilute hydrochloric acid or H2SO4 in alcoholic solution, तो मुझे क्या मिलेगा, तो कि मुझे C6H12O6 और C6H12O6 मिलेगा। लेकिन मेरे पास एक अल्डोहेक्सोज है, एक कीटोहेक्सोज है, और ये मुझे यहाँ पे मिल रहा है ग्लूकोज, और यहाँ पे मुझे मिल रहा है फ्रुक्टोज। यहाँ पे क्या मुझे मिल रहा है, फ्रुक्टोज मिल रहा है, ठीक है। आपको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं। When sucrose is hydrolyzed by boiling with either dilute hydrochloric acid or H2SO4 in alcoholic solution, तो इक्विमोलर यानी 1:1 मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इज ऑब्टेन्ड। तो इस तरह से हमें यहां से भी मिल सकता है। दूसरा हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, फ्रॉम स्टार्च में से हम चले जाएंगे। तो स्टार्च हमें मालूम है वो पॉलीसैकेराइड्स है, तो कॉमर्शियली तो हम इस तरह से ही बना सकते हैं। ये कहां से मुझे मिल रहा है, पॉलीसैकेराइड से मिल रहा है। देखिए, तो कॉमर्शियली जैसे स्टार्च का मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, C6H10O5N, ये स्टार्च का फॉर्मूला है, ठीक है, ये स्टार्च है। उसको अभी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे N मोल ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया, राइट, मिक्स डाइल्यूट H2SO4 के तरह। तो उसको हम नियर अबाउट यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, उसको नियर अबाउट 120 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ 2 और 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, क्योंकि ये थोड़ा लार्ज मोलेक्यूल है, बहुत बड़ा पॉलीमर है, तो उसको ब्रेक करने के लिए थोड़ा टेम्परेचर कंडीशंस एग्रेसिव रखना पड़ेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी मुझे अंडर प्रेशर मुझे प्रोसेस करना पड़ेगा। तो मुझे क्या मिलेगा, सो N मोल ऑफ C6H12O6, N मोल ऑफ C6H12O6, मुझे ज्यादा से ज्यादा इस तरह से ग्लूकोज मिल सकता है। सो वंस अगेन कॉमर्शियली देखिए, आप यहाँ पे जैसे आपने ग्लूकोज पाउडर की एडवर्टाइजमेंट आप देख रहे हैं, ग्लूकोन डी या कुछ ऐसा आप देख रहे हैं, कहीं लोगों को जैसे हॉस्पिटल में ग्लूकोज के जो बॉटल्स चढ़ा रहे हैं, तो वो ग्लूकोज इस यहां से नहीं ले रहे, वो यहां से ले रहे हैं, ठीक है। तो कॉमर्शियली ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च बाय बॉइलिंग इट विथ डाइल्यूट H2SO4 एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अंडर प्रेशर, ठीक है। तो इस तरह से हम यहां से ग्लूकोज है या जो हम बना सकते हैं। सो वंस अगेन ग्लूकोज है, हमें मालूम है वो अल्डोहेक्सोज है। अभी हमारा जो पूरा जो हमारा यहाँ पे जो सोच है, क्योंकि अभी हमारा पोर्शन क्या चल रहा है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में हमने जूम अंदर किया, तो अभी क्या कहां पे है हम, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में भी अब कहां पे है हम, अल्डोहेक्सोज। अल्डोहेक्सोज में भी हम कहां पे है, तो कि ग्लूकोज। तो अभी हमारा जो मेन फोकसिंग है वो यहाँ पे ग्लूकोज पे है, ठीक है। आपने कई बार ग्लूकोज का आपको जो देखा होगा, तो आपको मालूम होगा कि जो ग्लूकोज पाउडर में वो उसका सोर्सेस भी दिखाते हैं, जैसे उसने कॉर्न पाउडर में से मीन्स यानी कॉर्न में से बनाया हुआ है, या वो पोटैटो स्टार्च में से उसने ग्लूकोज बनाया हुआ है, तो वो वहां पे दिखाई देगा, जो उसका जो इंग्रेडिएंट्स दिखाते हैं, तो कि ये ग्लूकोज उसने कहाँ से लिया हुआ है, तो उसका रिसोर्सेज भी हम यहाँ से पता चला सकते हैं। लेकिन दिस इज द प्रिपरेशंस, हम यहाँ पे प्रिपरेशंस की जो बात कर रहे हैं, तो ये मैं यहाँ पे दिखाई है। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर मेरा होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है ना,
बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। कई बार तो पता ही नहीं चल पा रहा था कि ग्लूकोज कुछ ऐसा होता है। तो साइंटिस्ट ने क्या एफर्ट्स किए थे उस समय कि जैसे उसने केमिकल प्रॉपर्टीज यानी केमिकल रिएक्शन से किस तरह से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा, फिर उसने एजम्पशंस क्या हुआ, इसमें कौन सी दिक्कत आ रही है, वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे समझाऊंगा। आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास ही है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, ये बायोमोलेक्यूल्स में आप अच्छी तरह से, ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन है, तो हम उसको इस तरह से हैंडल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।